She entered every Indian home as Tulsi, a daughter, a wife, a woman of strength. She became a household name across the country. But Smriti Irani ji's story did not stop at television. From the spotlight of the small screen to the corridors of power. Over the years, she has held some of the most significant portfolios in the government, from human resource development to textiles, women and child development. Her journey is not just about success. It's about grit, determination, transformation, and a deep commitment to public service. सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे भारत में हम कदम कदम पर भाषाओं को बदलते देखते हैं, लेकिन स्मृति ईरानी जी खुद अपने अंदर भारत को बसाती हैं, कई सारी भाषाओं को जानती हैं. The lady who's inspired a generation, Smriti Irani ji, I welcome you on stage in conversation with Arnab Goswami. स्मृति ईरानी जी नमस्कार, और हमारे इस राष्ट्रवादी समूह में आपका बहुत बहुत धन्यवाद आ जाने के लिए. धन्यवाद. और पिछली बार भी आप हमारे कैंपस में आई थी, बहुत जल्दी आपको जाना पड़ा था. आज आपको हमने इसलिए रोक रखा था क्योंकि कई लोग आपको सुनना चाहते हैं. हम चाहते थे कि आप स्पीच दें, मगर आपको लगता है कि संवाद बेटर होगा, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट. और हमारे जितने लोग हैं स्ट्रीमिंग में देख रहे हैं, टेलीविज़न पर देख रहे हैं, और आपको नए अवतार में भी आजकल टेलीविज़न पर देख रहे हैं, कई लोग लुकिंग फॉरवर्ड टू हर रिटर्न, और एक्चुअली इट्स हैपेंड एज द ओरिजिनल एंड ओनली तुलसी. सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू यू फॉर दैट. थैंक यू. बिकॉज बहुत कम लोग हैं जो हु मैनेज देयर प्रोफेशनल लाइफ इन पॉलिटिक्स एंड आउटसाइड एज वेल. आई थिंक दैट्स ग्रेट. स्मृति जी, आज इस मुद्दे पे रहते हैं राष्ट्रवाद, और हमने इन द स्टार्ट wondering, Arnab, why you wearing that badge? I am a nationalist. ये मुझे दीपक You are a walking, talking badge yourself. You don't need a different identifier to tell the country and the world that you're a nationalist. I know, but you know, I was talking आज earlier today कि nationalism को इतना बुरा word बनाया गया था. It was made into a bad word. तो we should wear nationalism on our sleeve. We should tell people we are nationalist. यानी कि हमको डिफेंसिव नहीं होना चाहिए इस पर. I think it's become a political slur because of certain attacks that have been mounted. And people need to recognize that this is not a war cry. It is a wake-up call for every Indian. आज के भारत में और 10-15 साल पहले के भारत में एक फ़र्क है. आज का भारत वो है जो हर शख्स जो बोल नहीं पाता उसकी आवाज़ बनना चाहता है, उसकी आवाज़ उठाना चाहता है. जी. आज का भारत है कि जो दिखाई नहीं देता था उसको एक प्लेटफॉर्म दिलवाना चाहता है. आज का भारत वो है कि जिसके थाल में रोटी का टुकड़ा नहीं, वो भरपेट खाकर सो ले, इस मानसिकता वाला भारत है. पहला एक भारत हमने वो भी देखा कि नेता ने कुछ कहा तो वही परम सत्य हो गया. आज का भारत वो है जो हर दिन अपने लोकतंत्र को टेस्ट करता है कि क्या वो साधारण नागरिक जो भारत और भारत के प्रति भूमिका को या भारत के प्रति आस्था को व्यक्त करता है, वो क्या लोकतांत्रिक संवैधानिक पदों पर बैठे कुछ चुनिंदा लोगों से या सबसे सवाल कर सकता है, और क्या उस सवाल का जवाब मिलता है. सो डेमोक्रेसी इज़ टेस्टेड इन टुडेज़ भारत. And I'm very proud that I have seen democracy deliver also in today's Bharat. And you have been in politics for a long time now. 2.5 decades now. 2.5 decades. Your first parliamentary election in 2003. 2004. 2004, yes. So, Smriti ji, is the change only in politics or in society? I think the change is dual. How much of it is because of the Modi government coming in? Politicians are being held more and more accountable with the advent of technology. I think technology has democratized how democracy is viewed, how democracy creates new perspectives, and how democracy is held responsible. No, I meant that how much of the change we see in society, of which nationalist collective is a reflection, how much of it is because of the political change of the BJP or the Narendra Modi government in particular coming to power in 2014, and how much of it is social? Given my 2.5 decades in politics, I have seen Atal Bihari Vajpayee as Prime Minister of our country. And for the first time, Atal Bihari Vajpayee made Bijli Sadak Pani the conditions on which people of this country should judge the politician that they vote for. Before that, most of the issues were mostly emotional. Narendra Modi made performance politics the very foundation and basis
of how the citizen can hold their government or leadership accountable. And if you remember in 2014, for the first time, Digital India came to the surface and Narendra Modi made digital governance a political reality. Before that, most of our laws, most of our policies, in fact, all of it, and most of our political discourse was being held by the elite few in the power corridors of Delhi. Narendra Modi democratized it by even proffering a platform like MyGov, by becoming the first prime minister digitally available to his citizens to say, you have an opinion, let's make your opinion count. So I'll tell you what happened is in 2015, 2016, I don't remember, एक वीडियो आई हमारे पास और उस वीडियो में JNU में स्टूडेंट्स कह रहे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और फिर एक कुछ और दो, एक बार और मार दो, एंड ऑल काइंड्स ऑफ स्लोगन्स वर गोइंग ऑन. हमने वीडियो देखी और हमने जब इसको दिखाया पत्रकारों में, इन आवर जर्नलिस्ट कम्युनिटी, दे सेड ओ दिस इज़ नॉर्मल, दिस हैपन्स एवरी डे, देयर इज़ नो प्रॉब्लम. सो आई रिमेंबर आई कॉल्ड दी सेम पीपल, विमल जी, वो जो हमारे वो जो अभी जिनके खिलाफ केस चल रहा है, क्या नाम है उनका, वो कई सारे केसेस चल रहे हैं अभी, सेडिशन के केसेस चल रहे हैं. दे केम टू, हाँ, उमर खालिद, हाँ उमर खालिद, और वो मेरे प्रोग्राम में आए, टाइम्स नाउ में था, और उन्होंने दे जस्टिफाइड इट. उन्होंने कहा दिस इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इट इज नॉर्मल, और नॉर्मलाइज हो चुकी थी. जो आपने आपको याद नहीं होगा अर्नब जी, आप एडिटर थे, मैं आपके कार्यक्रम में एक शाम आप आई थी जब सीआरपीएफ के 70 से ज़्यादा जवानों को मौत के घाट उतारा गया था नक्सलियों द्वारा, और तब भी यूपीए के कार्यकाल में इस बात को रैशनलाइज किया गया था कि वर्दी पहनते हैं तो इनको स्वीकार्य है कि ये मरेंगे, शहादत देंगे, और वो नॉर्मलाइज हो गई थी. और अरुंधति रॉय कहती थी कि जो माओवादी है ये गांधीयंस विद गन्स है. इनकी पूरी एक इंटेलेक्चुअल जस्टिफिकेशन हो गई थी. और बाकी लोग, जितने लोग हैं इस ऑडियंस में, जितने लोग राष्ट्रवादी है, जिन्होंने आज नेशनलिस्ट कलेक्टिव का बैच पहना है, बहुत लोग उस समय चुप रहा करते थे, बिकॉज माना जाता था कि इन इंटेलेक्चुअल, कोट अनकोट इंटेलेक्चुअल था नहीं, इन इंटेलेक्चुअल उलझनों में मत पड़ो, नौकरी करो, सीधी सादी जिंदगी निभाओ, पॉलिटिक्स में मत घुसो, सामाजिक इश्यूज पर ज़्यादा मत बोलो, जब तक. और फिर चेंज आ गई क्योंकि हैशटैग का ज़माना आ गया था. उस समय हमने एक हैशटैग मैंने बनाई जो आजकल काफ़ी पॉपुलराइज हो गए, प्रधानमंत्री जी भी उसका यूज़ करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग. तो मैंने इनको देखा और कहा कि टुकड़े टुकड़े, भारत तेरे टुकड़े. तो मैंने बोला टुकड़े टुकड़े, और मैंने गैंग कहा क्योंकि इनको तो सोसाइटी या ग्रुप या कलेक्टिव नहीं कहा जाता, ये एक माफिया की तरह ऑपरेट करते हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग है. मैं अमेज्ड हूँ स्मृति जी, वो हैशटैग कैसे आज तक कॉमन पार्लेंस में आ गई है. सवाल है, आपको क्यों लगता है कि ये चेंज क्यों आई? क्या ये पॉलिटिकल चेंज थी, क्या दबी हुई आवाज़ थी लोगों की? नहीं, क्योंकि जो आप टेक ऑफ पॉइंट पे आ गए. आप एक प्रतिबिंब बन गए, नेशनलिस्ट हर कोने से, हर प्लेटफॉर्म से फिर अनअपोलोजेटिकली बोलने लगे. आप जब कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग, तो कई लोगों को लगता है कि हैशटैग है. अब मैं देश की शिक्षा मंत्री रह चुकी हूँ, तो कुछ रियलिटी से आपको मुखातिब कराना चाहती हूँ. आपने कहा क्यों दबे रहते थे लोग, क्यों अपनी आवाज़ नहीं उठाते थे. अगर वो साधारण से शिक्षक हैं और उनको अगर आगे बढ़ना है अपनी एकेडमिक स्ट्रक्चर में, तो जब तक वो इस गैंग का हिस्सा नहीं बनते, गैंग के अधीन नहीं होते, तो वो कभी भी ना नौकरी पाते थे ना प्रमोशन पाते थे. तो कुछ लोगों को वो इकोनॉमिकली इतना कंपेल करते थे कि अगर तुम्हें नौकरी में आगे बढ़ना है तो गैंग का हिस्सा होना पड़ेगा, या गैंग जो कहेगा वो करना पड़ेगा. अच्छा. और गैंग अगर तुम्हारे फेवर में नहीं है तो तुम्हारी आर्थिक जीवन में या सामाजिक जीवन अलग अलग चुनौतियां लगा, यानी कि आपको बॉयकॉट कर देंगे, बैनिश कर देंगे, आप आउटकास्ट कर देंगे. देखिए अर्नब जी, बहुत आसान होता है जो प्रिविलेज घरानों से हैं, जिनके बाप दादा पैसे छोड़ गए, कि वो एक व्यू रखें, जिसको हर दिन अपनी रोजी रोटी कमानी होती है, जिसको अपने परिवार का आर्थिक संरक्षण करना होता है, उस व्यक्ति के लिए वो परीक्षा की घड़ी हो जाती है कि मैं परिवार का संरक्षण करूं या राष्ट्रहित में कहीं किसी विवाद में पड़ूं. बहुत पावरफुल लॉबी है ये, बिल्कुल, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबी है, इसमें कोई दो राय नहीं होती. इसमें राहुल बाबा का भी हाथ है. देखिए, जिनको आपने बाय द वे, आई एम क्वाइट श्योर, पॉलिटिकल सवाल तो पूछूंगा ही,
राष्ट्रवादी मंच है, न्यूज का मंच भी है, आप अमेठी वापस आएंगे कि एक नहीं? बात कहूँ, आप ये सवाल मुझसे सालों साल से पूछते आ तो रहे हैं। मैं नहीं पूछ रहा, आप लोग नहीं पूछ रहे ये नहीं, सवाल। वो तो तालियां बजा रहे हैं, सवाल आप हाँ, पूछ रहे हैं। अगली बार स्वीट रिवेंज होगी कि नहीं लेकिन होगी? मैं, दर्शक जितने यहाँ बैठे हैं, आई थिंक ऑलमोस्ट सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। जी जी, स्टूडेंट्स सबकी कहीं ना कहीं नौकरियां हैं। जी। अगर आप लगातार अपनी नौकरी में 11 साल से ढंग से काम ना कर पाए तो क्या आपकी नौकरी रहेगी? उनकी है, इतना पावरफुल उनका इकोसिस्टम है। नहीं, आप नौकरी लेने वाले हैं कि नहीं अगली बार? सवाल ये। नहीं, मैं आपको बड़ा गंभीर एक मुद्दा बता, नहीं, मैं सीरियस सवाल वो पूछ रहा हूं। कैसे सर्वाइव। ये वायरल मोमेंट है, आपको कहना नहीं, पड़ेगा, वो तो आपको मुझे मालूम कमिटमेंट है। देनी पड़ेगी। आप और मैं मंच पे आते हैं, वही वायरल मोमेंट है। और अगर आपको ग्लोबल वायरल मोमेंट बनाना है तो आप में और मध्य में मिस्टर गांधी हो जाएं तो मैं फिर गांधी जी के साथ में, ये राहुल बाबा के साथ 2014 में मैं बैठा था, तो मैं तो चुप रहा पूरे इंटरव्यू। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि पीछे से इशारे कौन कर रहा था कि क्या इशारों बोला की जाए, जरूरत क्या नहीं है, वो अपने आप को इशारा करते हैं, वो ही एक इशारा है। वो तो कहते हैं मैं जिस दिन मैं जन्म, जो व्यक्ति ऐसे में मुद्दे से अलग जा रहा हूं, आप मुद्दे से भटक गए। जो व्यक्ति कहता लेकिन है मैं भारत, एक नहीं, इस मुद्दे पर मैं उसी मुद्दे पे नहीं, उन्होंने दो बोलना बातें चाहती कही है। उन्होंने कही है, आप इतना भावुक है राहुल जी के बारे में, मैंने मुझे बोलने भावुक नहीं हूँ, दे आप, मैंने भावुक नहीं हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा जिस दिन मेरा जन्म हुआ, हमारा जन्म किसी घर में होता है, किसी, है ना, किसी कम्युनिटी समाज में होती है। वो कहते हैं जिस दिन मेरा जन्म हुआ, मैं सिस्टम में जन्म हुई है मेरी। मैं समझ नहीं पाया, वो कहते जिस दिन मैं जन्म हुई है मैं तब से सिस्टम में हूँ। ये कौन सी विचित्र सिस्टम है? नहीं, लेकिन अर्नब जी, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं नहीं लेता। मैं इसलिए कह रही हूँ, हम सब यहाँ मजाक में हंस रहे हैं। आप सोचिए एक व्यक्ति का विश्वास कितना अडिग होगा कि उसको पता है कि वही सिस्टम है। ये कोई हल्की बात नहीं है। और उस व्यक्ति को ये पता इसलिए है क्योंकि बार बार सिस्टम ने उसे प्रमाण दिया कि हाँ तुम ही हो। जी। उस व्यक्ति को एक दिन भी संघर्ष नहीं करना पड़ा। वो व्यक्ति आज भी अडिग है। आप भले ही कहें कि 16 में बोला भारत तेरे टुकड़े होंगे, कोई भी राजनेता क्या किसी यूनिवर्सिटी में जाकर ये बोलकर राजनीति फिर किसी देश में कर सकता है? नहीं, आज भी उन्होंने कर कहा रहे हैं। कि उन्होंने कहा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर कहा कि इंडिया इज़ नॉट अ नेशन, वॉज नेवर अ नेशन, विल नेवर बी अ नेशन। ना भारत कभी राष्ट्र था, ना है, ना रहेगा। तो अगर नहीं ये है इनकी तो फॉर्मल चुनाव क्यों स्टेटमेंट। लड़ते हैं वो? देखिए, सोच देखिए, वो कहते हैं भारत यूरोपियन यूनियन की तरह है। मुझे ये जो मोहब्बत की दुकान की डेंजरस थिंकिंग है, आई रियली फाइंड मैं इट वेरी आपको एक डेंजरस। और उसका भाग पूछती हूँ। वो लोग कौन है कि ये सब जानते हुए भी फिर भी उनको वोट दे रहे हैं? आप आपको ये बताइए, भी आप लड़ सोचना चुकी हैं चाहिए। उनके खिलाफ। आपको ये भी सोचना चाहिए 140 करोड़ के देश में वो कौन है जो जानते हैं कि वो चाहते हैं भारत के टुकड़े हों फिर भी वोट देते हैं? वो कौन है जो जानते हैं कि ये कहते हैं विदेश में जाकर कि भारत एक राष्ट्र नहीं है फिर भी उनको वोट देते हैं? वो कौन है जो जानते हैं कि ये व्यक्ति कहता है ये लोकतंत्र नहीं है, सिस्टम है और मैं सिस्टम हूँ, फिर भी उनको वोट देते हैं? चिंता का विषय मात्र ये व्यक्ति, उनका परिवार, उनकी राजनीतिक पार्टी नहीं, वो लोग भी हैं जो इनकी कहीं ना कहीं काबिलियत पर विश्वास करते हैं। क्योंकि अगर काबिलियत का कहीं उदाहरण देना है तो उन्होंने उदाहरण क्या दिया है कि यूनिवर्सिटी में जाकर बोलना टुकड़े होंगे? देखिए, जोड़ तोड़ की राजनीति तो पॉलिटिशियंस करते हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ी चैलेंज देश में है जातिवाद, और दूसरी बड़ी चैलेंज है रिलीजियस और एनी कम्युनिटी अपीसमेंट, तुष्टीकरण की राजनीति। ये दो सबसे डेंजरस ट्रेंड्स हैं। क्या आपको लगता है स्मृति जी, कभी कभी हम बैठकर भारत की उन्नति देखकर, जीडीपी ग्रोथ, पर कैपिटा, विकसित भारत की बात करते हैं, मगर जो फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भारत कैसा रहेगा? विल वी रिमेन यूनाइटेड? व्हाट कीप्स अस यूनाइटेड? हमको मतलब एकजुट रहने की एक डेली प्रयास करनी होगी। क्योंकि मैं आपको फ्रैंक बात कह रहा हूँ, मैं आसाम से हूँ। आसाम की डेमोग्राफी बर्बाद हो चुकी है, आपको पता ही है। आसाम में बांग्लादेश सराउंडिंग सारे एरियाज़, आजकल वहाँ पे डेमोग्राफिक शिफ्ट इतनी हो गई है कि जो लोकल एसएमईज़ है वो रह नहीं पा रहे हैं। जो डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूँ वो अभी 75% मुस्लिम पॉपुलेशन वाली डिस्ट्रिक्ट बन चुकी है। ये मुस्लिम पॉपुलेशन ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है, बांग्लादेशियों की ग्रोथ है, और टेक ओवर हो चुके हैं वहाँ पे। आज आप आसामी बोलेंगे तो आपको टारगेट किया जाएगा, और अगर आप वहाँ पे तिरंगा लहराने की कोशिश करेंगे, कई जगह है जहाँ पे वो अलाउड नहीं है, कई जगह है जहाँ पे कहा जाता है कि शुक्रवार को छुट्टी होनी चाहिए। देखिए, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दिस, दैट आवर यूनिटी,
is always under threat. क्या हम अपनी यूनिटी को टेकन फॉर ग्रांटेड रखते हैं? think one has एनसीआर में बैठ के, मुंबई में बैठ one के has हमें to be लगता है very cognizant of 2-3 facts, Tell Arnab. And here I'll give a disclaimer. My own nani is from Dhubri, and Kokrajhar and Dhubri, you know, have been under Absolutely. such severe distress even during Western partition Assam, yes. and post-partition also for many years. Ji. Was subjected to many violent riots. Right. And then also on the basis of religion, many Hindu families had to go through many challenges, and families who are worried about the physical safety of the women and children in their families. मैं एक I have इंटरप्ट that- कर रहा हूँ. जिस जगह की बात हम अभी कर रहे हैं वो बहुत दूर नहीं है उस एरिया से जिसके बारे में सरजील इमाम ने चिकन स्नैक की बात कही थी, धुबरी और कोकराझार के आसपास, उससे थोड़ी 100-200 किलोमीटर दूर. दैट एरिया इज तो मेरा परिवार, मेरी नानी का परिवार आज भी वहाँ पर है. मुझे लगता है कि आपको समझना होगा, आज से 11 साल पहले जब हम फ्रेजाइल 5 का हिस्सा थे, तब कोई भी आकर थपथपाकर पीठ या सर के ऊपर थपथपाकर कहता था नाइस पीपल इंडिया. सडनली आप चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं. तो जो हीन भावना से ग्रस्त होता था आज वो सर ऊंचा उठा के चल रहा है, और वो जो चौथी पायदान पर है वो अभी संतोष नहीं कर रहा. वो भारतीय कह रहा है ऊपर 3 की पायदानों पर भी मुझे अपने देश को ले जाना है. डू यू थिंक द टॉप 3 विल बी सडनली अग्रीएबल एंड फ्रेंडली? आप ग्लोबली जाते हैं, आपको They क्या will लगता है कि not. अभी कंपटीशन ग्लोबली ज्यादा होने वाला है? Would I we have believe- become a threat I to think many that countries? You had officers here who have served with distinction across not only services but also defense establishment with regards to weaponry and the whole digital army background, and those conversations have already happened on your platform. My issue is this. Do you think we'll have more friends as we push our way No, forward I to the don't think so topmost at all. economy of the world? I don't think so at all. I think we'll have a lot of challenges. They I will think not I want think us as equals on their tables. No, they will push They us will back. want us to be subjugated. Yeah. And they cannot withstand that Indian who will look them in the eye and say, I will do what is best for India. In that, I don't care who says what and tries to divide us how. What is hurtful is that while a majority of our citizenry is trying to climb that ladder to international success, there are those elements who want to push us down and say, अरे झगड़ो, भाषा पे झगड़ो, जाति के आधार पे झगड़ो, Correct. प्रदेश के आधार पर झगड़ो. सोचिए, जब दुश्मन सरहद पर है तब कौन पूछता है सिपाही से तुम कौन सी भाषा बोलते हो, कौन सी जाति है तुम्हारी, कौन से प्रदेश से हो? उसने भारतीय सेना की यूनिफॉर्म पहनी है, वो जानता है उसे ना सत्ता मिलेगी ना किसी की सेवा मिलेगी. मर गया तो तिरंगे में लिपट कर घर लौटेंगे और फिर मेडल मिलने के बाद सब भूल जाएंगे. फिर भी वो खड़ा है आज. तो और कुछ नहीं, कम से कम इतनी लज्जा हो, इतनी शर्म हो हम में कि उसके लिए हम संगठित रहें. आप जब 2003 से अब तक देखते हैं, 22 सालों में नेशनलिज्म शब्द की एक्सेप्टेंस, इसकी यूज या इसकी तरफ चेंज या झुकाव कुछ आपने उसमें देखा है? बहुत बड़ा योगदान आपका है. आप इसको स्वीकार नहीं करेंगे, थैंक यू. लेकिन अनअबैशेडली आप उसके लिए खुद बहुत भुगत चुके हैं. आपका योगदान उसमें है. आपने पूछा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, अनअबैशेडली उन्होंने तब भी भारत को डिफेंड किया जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी. मनमोहन सिंह जी पर तोहमत लगाते थे, ताना कसते थे, दुश्मन देश भी और सो कॉल्ड फ्रेंडली कंट्रीज भी. और नरेंद्र मोदी तब भी भले ही भाजपा में थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, लेकिन राष्ट्र के प्रधानमंत्री की तौहीन नहीं होनी चाहिए, यह उन्होंने मुखरता से हर मंच से कहा था. तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी का नेतृत्व, जिस प्रकार से धड़ल्ले से अमित शाह ने धारा 370 जब हटा रहे थे संसद में बात की, वो देश ने देखा. हमारे इतिहास में कितनी बार साधारण नागरिक ने संसद की कार्रवाई को बैठकर देखा होगा? देखा. आपने एक मेरी क्लिप चलाई, एक मेरी स्पीच का यहाँ पर अंश दिखाया. वो बहुत सारे बच्चे आके मुझे बताते हैं, लास्ट व्हेन वाज सच स्पीचेस वॉच्ड? पीपल आर वॉचिंग बिकॉज दे नो दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑफ देयर ओन फीलिंग टुवर्ड्स देयर कंट्री. सो आई थिंक दैट यू एज समबडी फ्रॉम मीडिया, पीपल इन पॉलिटिक्स हु स्टूड अप एंड स्पोक for India, people overseas who speak in support of India, they know we are not a civilization that
tries to edge anybody out of a conversation. We know how to grow together. We know how No, to but walk there is together. ultra regionalism but हो रही है अभी. आग दिखाओगे तो जवाब देने का एक तरफ साहस भी ऑपरेशन हिंदुस्तान में है। सिंदूर और जी। उस समय की जो फीलिंग, और एक तरफ राज ठाकरे पकड़ पकड़ के जो हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषी लोग हैं, उनको मारते हैं, उनको वीडियो बनाते हैं और कहते हैं दिखाओ, तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा दी, तुम्हें तुम्हारा हमने अपनी पोजीशन दिखा दी। इधर कमल हसन और स्टालिन और बाकी लीडर्स कहते हैं साउथ इंडिया वर्सेस नॉर्थ इंडिया। ये छोटी बातें नहीं है। लिंग्विस्टिक डिवाइड, अल्ट्रा रीजनलिज्म, ये दीज आर थ्रेट्स वी हैव टू फाइट। वी हैव टू फर्स्ट एक्सेप्ट कि ये हो रहा है हमारे देश में, और इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज There नहीं is हो सकता। nobody who does not accept it. There is a recognition that there is a deliberate attempt to divide, to create fissures. So I think that you have to give credit to people who are watching you today, who are here in this room. These people who are sitting in this room, they recognize the threat and they are here. They are a part of this collective. And there are many who are watching you. The fact that your number grows, Arnab, in itself is an indication. People know of the threat that you're trying to flag. And by watching you, by coming to these conversations, they are saying, we as citizens stand by people like you. Speak. Be unafraid for those who are unheard, who can't speak, who are unseen. The biggest threat I feel is to be quiet. The biggest threat in our country is to be quiet, to play safe. और कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं जाता है। स्मृति जी, हमारी लेकिन nobody wants to pick up a fight. देखिए, you cannot hold a grudge against that ordinary citizen जो genuinely कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटना चाहता, So what जो can somebody genuinely do? झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। कोई कौन क्या नेशनलिस्ट जो है ऑप्शन ना, क्या है बताइए? जो नेशनलिस्ट है वो हर दिन तलवार की धार पे चलता है, क्योंकि उसको काम पर जाकर भी ताना सुनना पड़ता है, घर में भी सुनना पड़ता है, और भगवान ना करे अगर वो विपक्षीय किसी राज्य में है तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ भी एफआईआर होती है, कोई आकर उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करने का और गलत प्रयास बात है करना ना। डिफेंसिव में तो एंटी नेशनल्स को होना चाहिए, नेशनलिस्ट को डिफेंसिव में क्यों होना चाहिए? हम नेशनलिस्ट हैं और डिफेंस है या ऑफेंस है, हमें उस बात से कोई सरोकार नहीं। जब तक हम जैसे लोग हैं तब तक ना सिर्फ ऐसे कलेक्टिव बनते रहेंगे बल्कि प्रखरता से आवाज़ उठती रहेगी। बहुत हमें ये नहीं पूछना वाई मी, हमें ये कहना है वाई नॉट मी, ताकि हम जैसे 10 और खड़े हो जाएं, ताकि अगर हमारी आवाज़ दबा दी जाए तो 10 और हों जो डंके की चोट पर शिखर पर जाकर ज़ोर ज़ोर से बोले कि भारत के टुकड़े नहीं होंगे। और अगर भारत पर किसी ने आंख दिखाई, आपको उसका बहुत एक उत्तम उदाहरण बताती हूँ। आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात की। चंडीगढ़ में एक कलेक्टर ने एक निवेदन किया सार्वजनिक कि हिंदुस्तानी सामान्य आकर क्या थोड़ी मदद कर सकता है। स्टेडियम से 10,000 लोग भर गए जो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन खड़े थे वहाँ। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान ने हिंदुस्तानियों को बुलाया कि आओ थोड़ी मदद कर दो, ऑपरेशन चल रहा है सरहद पर। दैट इज इंडिया। दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन अ 9 o'clock डिबेट। दे डू नॉट टॉक अबाउट ऑक्सीमोरॉन्स लाइक गांधीयंस विद गन। गांधीयन विद गन। They live nationalism. They turn up when your country calls. They are not unified personnel, uniformed personnel. They turn up. एंड लोग कहते हैं शहरों में आपको ऐसा नेशनलिज्म नहीं दिखता। चंडीगढ़ के उस उदाहरण ने कह दिया क्या शहर क्या गांव। वो नेशनलिस्ट कौन है अर्नब? वो जो सरहद पर घर बनाकर आज भी गांव में रह रहा है, जिसकी शेलिंग चल रही है, आपने रिपोर्ट की थी, शेलिंग हो रही है, वो कह रहा कोई बात नहीं जी, हम लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, हम गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे लोग आपने उनको टेलीकास्ट में दिखाया है जिन्होंने कहा बीवी बच्चे घर में माँ, उनको हमने सिक्योर जगह पर रख दिया जी, मैं घर नहीं छोड़ रहा क्योंकि मुझे सरहद नहीं छोड़। हमने पुंछ में रिपोर्टर भेजा, वहाँ पे एक सब लोग चले गए थे, एक बूढ़ा आदमी वहाँ पे था, हमारी रिपोर्टर हर्षा उनके पास गई, कहा आप क्यों जा रहे हैं? कहते मैं कुछ नहीं जाने वाला। बोले शेलिंग हो रही है, गांव वाले चले गए। बोलते मुझे गांव में ही कंफर्टेबल लगता है, इधर ही सेफ लगता है। और एक तरफ है रॉबर्ट वाड्रा जो कहते हैं हिंदुत्व के कारण आसिफ मुनीर ने पहलगाम करवाई। तो मैं उन विभीषणों के बारे में सवाल पूछ रहा हूँ, मैं उन मीर जाफरों के बारे में सवाल पूछ रहा हूँ जिनको लग रहा है आपने रॉबर्ट वाड्रा के कंपैरिजन विभीषण से करके तौहीन कर दी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग हैं जिनको लगता है कि राष्ट्रवाद की बात और प्रेजेंट टाइम ये एक बुरा सपना है और ये बुरा सपना ख़त्म होने वाला है,
उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको ये कहना चाहूँगी कि सपना ख़त्म हो, सपना नया देखें, सपना टूटे या नया सपना बने, एक बात की गारंटी है, जी राष्ट्रवादी हर मोड़ से जी हर समय प्रखरता से बोलेंगे। अगर उन्हें लगता है वक्त बदलने से हमारा स्वभाव बदल जाएगा तो ये उनकी गलत फहमी है। तब भी कहते थे जब सत्ता उनके पास थी, अब भी कहते हैं जब सत्ता राष्ट्रवादियों के पास है, और आने वाले कल में भगवान न करे, भगवान न करे, आने वाले कल में भगवान न करे अगर उन्हें इस बात का गुमान है कि बागडोर उनके हाथ में आएगी तो जान लें कि रस्से का एक छोर हमारे हाथों में रहेगा। स्मृति जी, आप इतनी लो प्रोफाइल आपको नहीं होना चाहिए। मुझे लग रहा है जो अर्नब के साथ बैठ जाए वो कैसा डू low अग्री विद मी? profile? आप अग्री करते हैं मेरे साथ? मुझे लगता है कि स्मृति जी थोड़ी ज्यादा लो प्रोफाइल हो चुकी हैं। वैसे बहुत शी इज अरे आल्सो पहले हाई प्रोफाइल थी तब मुसीबत थी, अब लो प्रोफाइल हो तब मुसीबत है। तो आपको प्रोफाइल से मुसीबत है कि स्मृति ईरानी से मुसीबत है? मुझे याद है कि जिस बार पिछली बार जब आपने इसके पहले वाली बार 2019 में जब आपने बिग मार्जिन के साथ राहुल गांधी को आपने हराया था, तो हम खोज रहे थे कि स्मृति ईरानी कहाँ है। हाँ, आपकी ऑडियंस को बता दूं, मैं एक्चुअली उस दिन आराम से म्यूज़िक सुनते हुए अपने कमरे में बैठी थी। मैं किसी से मिल नहीं रही थी, मुझे आके बताया जा रहा था काउंटिंग में क्या हो रहा था, क्योंकि मैंने कहा मैंने अपना काम कर दिया, अब जब आएगा परिणाम तब देखी जाएगी। शायद मिस्टर गांधी का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, अचानक फ़ोन पे चिल्लाते हुए मुझे अर्नब गोस्वामी सुनाई दिए कि आप कैसे चुपचाप बैठ सकती हैं, हिस्टोरिकल मोमेंट है। मैंने कहा भैया काउंटिंग तो होने दो। उन्होंने कहा काउंटिंग छोड़िए, सामने से मुझे व्यक्ति याद ने है, मुझे कंसीड याद कर है। लिया है। मुझे याद तो है। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है चिल्लाते हुए अर्नब गोस्वामी की आवाज़ फ़ोन पे सुनने का। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए आपने ग्लोबल लेवल पर बहुत काम किया है, और मैं ऑडियंस को कहना चाहता हूँ कि ग्लोबल लेवल पर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, मिडिल ईस्ट हो, अमेरिका हो, आपने बहुत काम किया है बिहाइंड द सीन्स पिछले ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पिछले 10 महीनों में। एक आप अगर इसको साझा तरीके से समझा सकें कि आपको जितनी आपने ग्लोबल ट्रैवल्स की, आप देश का नाम ना लें, मगर भारत के खिलाफ किस तरह की षड्यंत्र हो रही है, क्योंकि मैं अगर षड्यंत्र के बारे में कहूं तो बाकी मीडिया वाले कहते हैं कि अर्नब गोस्वामी इज़ अ कंस्पिरेसी थियरिस्ट। क्या हमारे खिलाफ षड्यंत्र है, और अगर है तो उसके 2-3 पहलू आप अगर हमारे साथ शेयर करें विदाउट नेमिंग कंट्रीज, सो दैट वी आर अवेयर, सो दैट द यंगर जनरेशन इज मोर अवेयर ऑफ व्हाट्स गोइंग ऑन। Firstly, to ensure that what I'm about to say doesn't get convoluted Right. and get trapped in the narrative of conspiracy, आप डिस्क्लेमर let us no because you want to speak to the younger generation, आई वांट टू, yes I want, and the younger generation Arnab will judge us on facts yes and not on rhetoric. जी, So what are the facts? That India is the largest consumption economy in the world. that's true, That India's demography is dominated by youthful energy. yes, That India is one of those very rare countries, in fact the only one, which is a bridge between the global north and the global south. yes, yes, We understand the institutions of the global north, That's true. we understand the challenges of the global south, and now India presents itself as the bridge between two geographies. आप हिमाकत देखिए जब मैं ये बोलती हूँ। मेरा, आप राष्ट्र का नाम नहीं लेना चाहते वो उचित है, क्योंकि कई राष्ट्रों के साथ वर्तमान नहीं, आप में ले सकती सरकार हैं, की, मैंने बस- नहीं, मैं एक बहुत ही अनुभवी पॉलिटिशियन हूँ, मैं जानती हूँ मेरी सरकार आज कई राष्ट्रों के साथ कई मुद्दों पर वार्ता कर रही है। लेकिन मैंने ये भी देखा कि एक लोगों को गलत फहमी है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ महिलाओं की वो भारत में हैं। दूसरा, उनको ये गलत फहमी है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा गरीबी भारत में है। तीसरा, उनको ये गलत फहमी है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो अधीन हैं वो भारत में है। उन्हें इस बात को सुनकर मेरी बात कर्कश लगती है कानों में, जब मैं कहती हूँ कि हिंदुस्तानी औरत ना मजबूर है, ना किसी पर इतनी असहाय रूप से डिपेंडेंट है कि वो कामकाजी औरत है। ये सुन के कई बार लोग, द शेयर नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, स्तब्ध रह जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से उभारा।
अंग्रेज़ कहते हैं 250 मिलियन। किसी और देश में अगर 250 मिलियन लोगों को गरीबी से उभारा जाता तो वो देश डंके की चोट पे उसी में अपने लिए नोबेल पुरस्कार मांग लेता। भारत को ये तवज्जो नहीं दी जाती। किसी देश ने अगर, और ये आप खुद इसका सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, अपने मुल्क में 80 करोड़ नागरिकों को सतत 3-4 साल मुफ्त का राशन दिया होता तो उस देश के डंके हर कोने में बजते। भारत का नहीं बजने देते क्योंकि उनको ये पचती नहीं है बात। आज हमारी महिला, आप देखते हैं, मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट में हैं, हमारी संसद में है, लेकिन अर्नब जी हमारे देश में 14 लाख महिलाएं पंचायत में चुन कर आती हैं और किसी देश में यह व्यवस्था नहीं है, इसलिए इसकी बात कहीं नहीं करते। कहीं इस बात की चर्चा नहीं होती कि इस देश ने वो मुकाम देखा जब कोविड में किसी देश में टॉयलेट पेपर ख़त्म हो रहा था और चिट पे बैठ बैठ के वो बता रहे थे कि इसको कहाँ क्या दवाई लेनी है। हिंदुस्तान ने अपना वैक्सीन भी बनाया, कोविन का ऐप भी बनाया, अपने सारे देशवासियों को भी दिया, 160 देशों को भी दिया। अगर इतनी उदारता कोई और देश का, पश्चिमी देश करता जी, हाँ, तो उसका डंका 50 साल तक बचता। आपको याद होगा, आप रिपोर्ट कर रहे थे जब कोविड आया तब पश्चिमी देशों ने कहा अरे इनके 6 लाख गांव हैं, गांव में हिंदुस्तानी को क्या समझ आता होगा। वो स्तब्ध रह गए जब हमारे गांव का साधारण हिंदुस्तानी उनसे ज़्यादा डिसिप्लिन दिखाने लगा। तो मेरा ये मानना है हमारी कई उपलब्धियां हैं। डार्क साइड ऑफ द मून पे जाना, करेक्ट। Today we are the largest digital financial transactional platforms and ecosystems in the world. That's true. हम उसकी बात ही नहीं करते क्योंकि हम ज़िंदगी जीने में इतने मसरूफ़ हैं कि लोगों को कहते नहीं कि देखो किस अंदाज में जी रहे हैं। कि हमारे यहाँ एक टाटा बिरला हो या एक साधारण मजदूर, दोनों UPI का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ये कभी बोला नहीं कि हमने 10 साल में 50 करोड़ लोगों का बैंक का खाता पहली बार खुलते देखा है। क्योंकि प्रश्न आएगा कि भाई 70 साल फिर उनका क्यों नहीं खाता खुला। तो हम उस स्वभाव के हैं कि घर के झगड़े घर में कर लेंगे, बाहर जाके तो बोल दो कि हिंदुस्तान की क्या उपलब्धि है। उसमें बीच में कुछ लोग आते हैं जो कहते हैं हिंदुस्तान तो बटा हुआ है, टुकड़ों में है। तो ये चुनौतियां हैं, वास्तविकताएं हैं, लेकिन इन चुनौतियों से परास्त होकर दुबक कर घर में बैठ जाएं, ऐसे राष्ट्रवादी तो हम भी नहीं हैं। तो आप लड़ेंगी अमेठी से अगली बार? नहीं, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए, नहीं, एक मिनट, सवाल मुझे 19 में भी किया था, 24 में भी किया था। जैसे आपने षड्यंत्र वाले सवाल पर बहुत लंबा चौड़ा रिप्लाई दिया, मगर आप उल्टी तरफ आ गई। मैं तो सीधे उसी पे आ रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे 19 में पूछा, आपने मुझे 24 में पूछा, दोनों वक्त मेरा जवाब था कि मैं कहाँ से क्या करूंगी वो पार्टी निर्धारित करती है। नहीं, वो सब तो औपचारिक बातें। नहीं, औपचारिक नहीं, हकीकत है भाई। मन क्या कहता है? देखिए उन एक्टर्स की बात क्या है? उन आपकी एक्टर्स मन में की से बात नहीं हूँ जिसने सत्ता की गली में पैर रखा था। मैं मुख्यतः तब भाजपा से जुड़ी जब भाजपा ने सत्ता खोई थी। स्मृति जी, आप ये भूल गई हैं कि आप मेरे साथ बैठी हुई हैं। हाँ। और मैं कोई दूसरा साधारण एंकर भी नहीं हूँ। और आप भूल गए कि आप मेरे साथ बैठे हैं। नहीं, देखिए आज बहुत आसान है, प्लेटफॉर्म मिले, अर्नब गोस्वामी जैसा एडिटर मिले तो कोई भी ठहाके मार के कह देता है मुझे ये चाहिए। लेकिन क्या जनता वैसा नेता चाहती है जो कहे उसको क्या चाहिए, या वो करे जो जनता को चाहिए? तो मेरी पार्टी मुझे कहाँ से क्या किस रूप में प्रस्तुत करेगी ये मैं नहीं जानती। दूसरी तरीके से सवाल को हाँ, किसी भी तरीके से कीजिए। नहीं, जितना देखिए, मीडिया का आपका अनुभव है उतना मेरा भी है। देखिए जब ये न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़ आई 1 हफ्ते पहले कि स्मृति जी तुलसी के रूप में वापस आएंगी टेलीविज़न पर, देखिए स्मृति जी, कांग्रेस खुश हो गई। राहत की सांस उनकी थी, उनको लगा बच गए। अगली बार देखिए अर्नब जी, मैदान जंग में सुन लीजिए, मैदान जंग में कई सिपह सालार शहीद होते हैं, नहीं, उनको लगा कई हारते हैं, लेकिन अपना ओहदा ऐसा बनाओ युद्ध भूमि पर कि थोड़ा अगर धक्का भी लगे तो घमंड दुश्मन को आए कि देखो उसको धक्का मारा था। अच्छा, नहीं तो जो खुश हैं, अब घर की बहू के नाते जवाब दे दूं, तो घर में तो हर प्रकार के प्राणी होते हैं। कुछ बहू अगर प्रताड़ित होती है तो ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी औरत हूँ,
जो लोग ऐसा मानते हैं कि मैं प्रताड़ित हूँ, उनको मुस्कुरा के कहती हूँ कि मैंने इतिहास सिर्फ जीत पर नहीं लिखा, मैंने हार के कंधे पर चढ़कर भी नया इतिहास रचा है। मैं 2004 में, आपने पूछा मैंने चुनाव कब लड़ा, 2004 में मैंने चुनाव चांदनी चौक से लड़ा, हारी। अगर जीतती तो क्या जहाँ बैठी होती? तो हर बार फसाना जीत से नहीं, कभी कभी हार से भी लिखा जाता है। ये सब एब्स्ट्रैक्ट बातें हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि सीधा सवाल ये है कि कई लोग कह रहे हैं, मैं भी सीधा ही आपको abstract दे रही हूँ। कंप्लीट। देखिए, कई लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी, देखिए, कोई और मिलेगा जिसको अर्नब गोस्वामी का ही कहना है complete। कई लोग कह रहे हैं स्मृति ईरानी इज लीविंग पॉलिटिक्स। कई लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी इज लीविंग पॉलिटिक्स। अब उनको जवाब तो देना पड़ेगा आपको। कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को। छोड़ो बेकार की बातें। देखिए 2004 में भी आपको याद होगा, कपिल सिब्बल से मैं हारी थी। जी मुझे पता है। वो मंत्री बने थे, तब भी यही ढाके लगाए गए थे। तो एवरी टाइम यू थिंक यू फिनिश्ड मी, आई हैव द टेंडेंसी टू स्प्रिंग राइट बैक अप। सुपर। तो इतना ही उन लोगों को हिदायत देना चाहती हूँ कि सोए हुए शेर की पूंछ पर कभी पैर नहीं रखा जाता। बहुत बढ़िया। देखिए, वी नीड नेशनलिस्ट लीडर्स लाइक हर, वी नीड यंग लीडर्स लाइक हर, एंड आई थिंक अमंग women leaders in the country she is among the foremost, and we would want to wish her all the best in both in television and in politics. स्मृति जी, आपको बहुत दूर जाना है। आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, आपके साथ आइडेंटिफाई करते हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण मैं बता देता हूँ आपको। क्योंकि you are a self-made person. You have, wherever you have come in life, and that's why I appreciate you the most, is because you started with nothing and you are not afraid of going back to nothing. आप में कोई डर नहीं है उसका, इसलिए you have started from nothing. You are very popular today. I think lot of success will come to you both in the media world, where you're going back for some time, and in politics. So you did ask me, what is the one desire that Smriti Irani has? You did allude to the fact. अभी you were dodging so many questions. मुझे लगा मैं लोगों के सामने. What do you want politically? And you said तुम अकेली आई हो, तो जाऊंगी भी अकेली ही भाई। नहीं, मैंने ये सब नहीं कहा। मैं इतना फिलोसॉफिकल हुई नहीं। लेकिन नहीं, मैं थोड़ी हूँ। हाँ। लेकिन मुझे लगता है यहाँ जितने हिंदुस्तानी बैठे हैं वो इस बात से कहीं ना कहीं सहमत होंगे कि एक नेशनलिस्ट का सबसे बड़ा गौरव ये होगा अर्नब कि वो तिरंगे में लिपट कर जाए। तो मैंने कभी यूनिफॉर्म नहीं पहनी, तो अगर देश का कानून तब ये इजाज़त देगा कि एक साधारण नागरिक तिरंगे में लिपट कर जाए, तो मेरे जीवन का ये सौभाग्य होगा, चाहे कुछ भी क्या हो, कि कहीं ना कहीं मेरे परिवार में इतनी क्षमता हो कि तिरंगा एक बार मेरी डेड बॉडी को छुआ दे, वो मेरा गौरव होगा। आप ये बातें, देखिए, आपने अपनी बात कही, अपनी ख्वाहिश रखी। हमारी ख्वाहिश है दैट यू गो वेरी फार इन लाइफ, एंड वी वांट यू टू बी एसोसिएटेड विद नेशनलिस्ट कलेक्टिव एंड आवर ओन एफर्ट, जिसको हम राष्ट्रवादी समूह कहते हैं। सब लोग ये बैच पहन रहे हैं, कभी आप भी, आपको भी एक बैच गिफ्ट कर दूंगा, आप भी इसके थोड़ा सा प्रोपोगेट करें। यू आर वेरी, थोड़ा सा नहीं, पूरा। वेरी नाइस, सी दैट्स अ कमिटमेंट। हम बैच, शी इज नाउ पार्ट ऑफ द नेशनलिस्ट कलेक्टिव फैमिली। Thank you, Smriti ji. Thank you. It's a Thank you, privilege and Smriti an ji. honor It's to a speak to you. privilege and an honor to meet you today. Thank you.